So we have completed DNA polymerase in prokaryotes. Let's talk about DNA polymerase in eukaryotic organisms. Okay, in eukaryotic organisms there are 10 different types of DNA polymerase. 10 different types. In prokaryotes में कितने थे? 5 थे DNA polymerase 1 से DNA polymerase 1 से 5 तक थे. और इसमें यूकैरियोट्स में कितने हैं? There are almost 10 types of DNA polymerase. तो इसको we can broadly categorize this into two types. Again, one is nuclear DNA polymerase and another one is organelles or extranuclear. Okay. And तो यूकैरियोट्स में let's talk about organelles in mitochondrial chromosomes. Mitochondrial DNA. Okay. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज गामा कहते हैं. ओके. It has 5' to 3' polymerization activities and it have 3' to 5' exonuclease activity and proof reading. So this doesn't do the error prone replication. It has proofreading, so there is no chance of error prone replication. जो error होगा वो remove किया जाएगा, repair किया जाएगा. And in nuclear, तो हम nuclear में क्या, अगर nuclear DNA polymerase की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं DNA polymerase अल्फा. अल्फा को प्राइमेज भी कहते हैं. और सेकंड वन है डीएनए पॉलीमरेज बीटा एंड थर्ड वन है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन और कोहेसिन. Okay, so these are the DNA polymerase in eukaryote, which is DNA polymerase alpha, beta, delta, epsilon and cohesin. Okay, and so I'm going to make a chart over here like this. For example, alpha, beta, delta and epsilon. What does these do and what are their function? तो इनमें 5' to 3' पॉलीमराइजेशन कौन करता है इनमें से? ओके. और ये लोग 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं कि नहीं है. ओके. सो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को क्या है? 5' to 3' पॉलीमराइजेशन में दिखाता है. यस, ठीक है. एंड द बीटा आल्सो शोज 5' to 3' polymerization. Epsilon also shows and this delta also shows and epsilon also shows. But the difference is the DNA polymerase alpha and DNA polymerase beta do not have 3' to 5' exonuclease activity. So no exonuclease activity. And it doesn't also show exonuclease activity. Okay, so these two DNA polymerase alpha and beta doesn't have exonuclease activity, so they do not have proofreading. So how and who does the proofreading is the delta and epsilon. These have 3' to 5' exonuclease activity and this epsilon also have 3' to 5' exonuclease activity. Okay. So let's talk about DNA polymerase alpha or primase. Okay, so the DNA polymerase alpha क्या करते हैं? ये polymerization करते हैं, सबसे पहले, और primase करते हैं. Primase means primer formation और primer बनाते हैं. It is heterodimer. So it shows 5' to 3' DNA polymerization activity
और इसको हम क्या कहते हैं, आई डीएनए कहते हैं. इट्स कॉल्ड इट आई डीएनए, इनिशियल डीएनए सीक्वेंस जब बनाते हैं. इट्स अप्रोक्सीमेटली 14 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है. ओके, सो इट हैज ऑल्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम primase activity, which means the formation of RNA primer. Okay, so what is primer? Primer is a short nucleotide sequence. जो क्या करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में 3-OH प्रोवाइड करते हैं. इसके बाद आगे जाके ये क्या करते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमर बनाते हैं और प्राइमर बनाने के बाद पॉलीमरेज स्विचिंग करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है रेप्लिकेशन फ्लो, यहाँ पे है पॉलीमराइजेशन. अल्फा ने यहाँ पे क्या किया, प्राइमर बनाया 3-. ओके, ये प्राइमर बनाने के बाद कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी आगे ले जाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, आई डीएनए. ओके, इसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसी तरह लैगिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है. ठीक है, तो क्या करते हैं, जो ये हैंड ओवर करते हैं, पॉलीमरेज स्विचिंग कहते हैं इसको, पॉलीमरेज स्विचिंग. पॉलीमरेज स्विचिंग मतलब हैंड ओवर of DNA polymerase अल्फा टू डेल्टा एंड एप्सिलॉन. तो क्या करती है, जो डेल्टा होता है ये लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, और ये एप्सिलॉन क्या करते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बनाते हैं. तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से इसने ट्रांसफर किया किसको, एप्सिलॉन को, और यहाँ पे किसको किया, डेल्टा को. तो ये आगे लेके जाएगा फिर आगे की ओर. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया. ओके, सो दिस डीएनए पॉलीमरेज हैव सर्टेन क्या है, लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज कुछ लिमिटेशंस. सबसे पहला लिमिटेशन है, इट रिक्वायर टेम्पलेट्स. टेम्पलेट विच मीन्स एक सिंगल स्ट्रैंड चाहिए. ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसका जो एक स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड, ये एज ए टेम्पलेट ये यूज करेगा. एंड इट विल नॉट बी एबल टू मेल्ट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये मेल्ट नहीं कर पाएगा, नॉट एबल टू मेल्ट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें हेलिकेज चाहिए. Okay, helicase will melt this DNA and make it into a single standard DNA. तो ये क्या करेगा, इसको डबल को सिंगल करेगा. It only synthesis the DNA into 5 prime to 3 prime direction. ये 3 prime to 5 prime में कभी नहीं करेगा. It will. और एक लिमिटेशन है इसको 3-OH फ्री चाहिए बिल्कुल भी. तो 3-OH इसको कौन प्रोवाइड करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा विच मेक प्राइमर, और प्राइमर इसको 3-OH फ्री इसको देते हैं. एंड अनदर लिमिटेशन इज सुपर क्वाइलिंग है. ये सुपर क्वाइलिंग को रिमूव नहीं कर पाते. इट विल नॉट एबल टू रिमूव दिस सुपर क्वाइलिंग. सो दिस सुपर क्वाइलिंग विल रिमूव ईदर बाय टोपोआइसोमेरेस इन यूकैरियोट्स और इन case of prokaryotes, the gyrase will remove the supercoiling. So what does that means is the DNA polymerase will only elongate the DNA. Okay, it will not initiate the DNA replication. It will elongate and it will get terminated at the end. Okay.